Without wasting time, let us move to our next performance. In this room, we are not just individuals. We are a community. We are a family united by a common purpose. And today, we are gathered for this wonderful occasion. I want to welcome each one of you to the family. A family that grows stronger through love, support, and shared experiences. Now it's time for a truly special performance. Let us welcome together as a family and enjoy this beautiful act which celebrates the spirit of unity, love, and togetherness. Please join me in welcoming our students for the beautiful performance. Welcome my family. Yes, audience. To share your life with us as we grow in love, and may we always be to what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. I'm feeling so energetic and welcomed by this song. And I can feel the positive vibes in the air. Now let's keep this energy flowing, and I want to hear from you. On the count of 3, I want to hear a big yes from all of you. Let the whole room hear your sound and excitement. Ready? 1, 2, 3. Yes!
That was amazing. Your energy is infectious, and I can feel the spirit of family here today. Now I want my beloved principal to please honor the students. उस अजीम हस्ती के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकते हैं जिसकी अज़मत खालिक़े कायनात के ज़ुबान से कुछ यूँ अदा हुई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो कहीं पर फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, तो कहीं पर फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर, तो कहीं पर फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर किताब फरमाया। मोहतरम साइमीन, वो अजीम शख्स जिसने सच्चाई की तरबियत की तो सिद्दीक़े अकबर बना दिया, अदल का दर्ज दिया तो फारूक़ आज़म बना दिया, सदाकत की निगाह दी उठाई तो उस्मान गनी बना दिया और मर्तबाए शुदा में अली शेर खुदा बना दिया। Let us welcome Ahmad Zishan, the bright student from grade 1, to speak on Nabi ki Taaroof and share his love and admiration for a Prophet sallallahu alaihi wasallam. My name is Ahmad Zishan Sharif from grade 1. मैं कुरान के बारे में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का चेहरा बता। कुरान कहता है वज़्ज़ुहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की जुल्फ़ें बता। कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के दांत बता। कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की यतीमी ज़िंदगी बता। कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की नज़र बता। कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की आँख बता। कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के लब बता। कुरान कहता है वलिसान व शफ़तैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का सीना बता। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की जिक्र बता। कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का शहर बता। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की नबूवत बता। कुरान कहता है या अय्युहन नबी
मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की रिसालत बता। कुरान कहता है या अय्युहर रसूलु। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का चादर बता। कुरान कहता है या अय्युहर मुदस्सिर। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की कमली बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। जज़ाकल्लाहु खैर। Now, our young performers are about to present a beautiful nasheed titled I Am a Muslim, which express the pride, strength and commitment in our hearts. Through this nasheed, they will remind us the importance of our identity, our values and our devotion towards Islam. Let's support these little stars as they sing their hearts out with a deep sense of faith and love. Let's give them a warm welcome as they take the stage. In everything I do every day, we are Muslims, the things we say. In everything we do every day. Ooh, Bismillah. Ooh, Alhamdulillah. Ooh, Bismillah. Ooh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and thus I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah. When we full we say Alhamdulillah. When we eat we say Bismillah. When we full we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink we say Bismillah. When we're done we say Alhamdulillah. When we drink we say Bismillah. When we're done we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and dad, coming home, oh what fun we had. Driving in the car, Bismillah. Coming safely home, Alhamdulillah. Bismillah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah. I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. When we sleep we say Bismillah. When we rise we say Alhamdulillah. When we sleep we say Bismillah. When we rise we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Do 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 do, Bismillah. Do 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 do, Alhamdulillah. Do 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 do, Bismillah. Do 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 do, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashallah, that was mind-blowing performance. Once again, round hand of applause. Now I request our beloved chairman to please come on the dais and honor
these little angels. I request all the parents to please collect your kids from green number 2. There comes a time when we hear you sad call, when the world must come together as one. There are people dying.
That was a spectacular performance. Dear respected parents, as we continue to witness the incredible performance today, I would like to take a moment to share something very close to my heart. This is what we as educators and a community strive to teach our students. Not just academic knowledge, but the values that make them compassionate, empathetic, and loving individuals. We aim to instill in them the importance of being mindful to others, caring, and those in need. तालीम बेशक ज़रूरी है, लेकिन वो असली मंजिल है जो हम अपने बच्चों को दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी देते हैं, जो उन्हें बेहतर इंसान और दुनिया के अच्छे शहरी बनाते हैं। एक अच्छा इंसान सिर्फ वो नहीं है जो तालीम में अच्छा हो, बल्कि वो होता है जो अपनी असल ज़मी और जुदा से ना हो, सब्र और आदाब से भरा हो और दूसरों के लिए दयालु और ईमानदार हो। Once again, round hand of applause to this beautiful performance.
Yes, audience, why are you sitting silent? A round hand of applause once again to the spectacular performance. Now I request my beloved principal to please come on the dais and honor them. Kannada quote says, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಗು ಹೋಗಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ. Now we are about to experience a truly special and heartwarming performance. We are honored to present a beautiful Kannada song, Bhanubhumi Sarvajeevi, performed by the talented Tahir group. This song captures the essence of unity, peace and the beauty of life, and we are sure it will touch your hearts. I welcome the students to perform Bhanubhumi Sarvajeevi. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಭಾನುಭೂಮಿ ಸರ್ವಜೀವಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಬೇಡುವೆನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯನಾಥನೆ. ಕಡಲ ಜಲದ ಒಳಗು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ, ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದೆ. ಭಾನುಭೂಮಿ ಸರ್ವಜೀವಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಬೇಡುವೆನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯನಾಥನೆ. ಕಡಲ ಜಲದ ಒಳಗು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ, ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಒಡೆಯಾನು ನೀ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಅಧಿಕಾರಿಣಿ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಕಾಯುವೆ ನೀ, ನಮಗೆ ಕಾಣದ ಅದ್ಭುತ ನೀ. ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಒಡೆಯಾನು ನೀ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಅಧಿಕಾರಿಣಿ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಕಾಯುವೆ ನೀ, ನಮಗೆ ಕಾಣದ ಅದ್ಭುತ ನೀ. ಭಾನುಭೂಮಿ ಸರ್ವಜೀವಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಬೇಡುವೆನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯನಾಥನೆ. ಕಡಲ ಜಲದ ಒಳಗು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ, ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ತಾರೆಗಳು, ಸಾಗರ ಸರ್ವವೋ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು.
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ತಾರೆಗಳು ಸಾಗರ ಸರ್ವವೋ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಜಗದೊಡೆಯ ನೀನಲ್ಲವೇ ಅಂತ್ಯ ಮರಳುವಿಕೆ ನಿನಗಲ್ಲವೇ ಜಗದೊಡೆಯ ನೀನಲ್ಲವೇ ಅಂತ್ಯ ಮರಳುವಿಕೆ ನಿನಗಲ್ಲವೇ ಭಾನುಭೂಮಿ ಸರ್ವಜೀವಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಬೇಡುವೆನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯನಾಥನೆ ಕಡಲ ಜಲದ ಒಳಗು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದೆ ಭೂಮಿಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಬರೆದ ಅಸ್ತ್ರವಾದರೂ ಕಡಲ ಜಲವೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಮಸಿಯಾದರೂ ಬರೆದು ಮುಗಿಯದ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಾಧಿರಾಜನ ಮಹಿಮೆ ಸರ್ವಬಲ್ಲವನೋ ರಾಹಿಮೆ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸೋ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಭಾನುಭೂಮಿ ಸರ್ವಜೀವಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಬೇಡುವೆನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯನಾಥನೆ ಕಡಲ ಜಲದ ಒಳಗು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಒಡೆಯಾನು ನೀ ನನ್ನ ಜೀವದ ಅಧಿಕಾರಿನಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಕಾಯುವೆ ನೀ ನಮಗೆ ಕಾಣದ ಅದ್ಭುತನಿ ಭಾನುಭೂಮಿ ಸರ್ವಜೀವಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಬೇಡುವೆನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯನಾಥನೆ ಕಡಲ ಜಲದ ಒಳಗು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದೆ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ Your music has not only touched our hearts, but has beautifully conveyed the message of unity, peace, and love. Thank you, my dear students. Now I request our beloved chairman to please come on the dais and honor our students. About our school journey. So please bear with me and enjoy this session. 12 years journey of this school is deeply rooted in the remarkable vision of one of the greatest personality. His vision was not just about providing traditional education. It was about creating a foundation for a holistic learning experience. कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे एक इंसान का हाथ होता है, हर कामयाबी के पीछे एक कहानी होती है, हर कामयाबी के पीछे कुछ कहीं अनकही बातें होती है। एलाइट बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल की कामयाबी के पीछे बेशक वो दो अजीम हस्तियां हैं जो आज हमारे बीच में मौजूद बैठे हैं। एक जो हमारे चेयरमैन शाकिर अली सर हैं और दूसरे हमारे प्रिंसिपल मोहतरमा वहीदा बानो है। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन इस सक्सेस के पीछे भी एक ऐसी हस्ती और ऐसी शख्स का राज है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जिन्होंने एलाइट बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल की बुनियाद रखी है। Marhum Sayyid Rasool, the unforgettable legend. Mr. Sayyid Rasool, the late father of our esteemed principal. Yes, my audience, ये अजीम शख्सियत हमारे वहीदा बानो प्रिंसिपल के वालिद हैं. Please give round hand of applause. He was an extraordinary man whose impact extended
far beyond wealth and fame. He was a humble, down-to-earth individual who dedicated his life to philanthropy and service. His generosity knew no bounds. He contributed to the construction of mosques, supported the education of unprivileged individuals, and uplifted entire communities. Though he is no longer with us, his legacy lives on in every student you see, every teacher, and every individual who carries the values he instilled. मरहूम जनाब सैयद रसूल साहब एक बेमिसाल शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को तालीम, समझी, खिदमत और फलाही कामों के लिए वक्फ कर दिया। उनकी खिदमत के दायरे वसी था। उन्होंने तालीमी निज़ामों की बुनियाद रखी, बेशुमार मस्जिद तामीर करवाई और ज़रूरतमंदों को अपना शियार बनाया। उनकी सखावत और नेक नियति का ये आलम था कि वो हमेशा पासे पर्दा रहकर खैरात और सदक़ाए जारिया का काम अंजाम देते थे। उनके बहुत से फलाही काम ऐसे हैं जिनके किसी को इल्म नहीं, क्योंकि वो हकीकी इखलास के साथ मदद किया करते थे बगैर किसी शहरत या नाम और नुमात की ख्वाहिश की। यही असल अजमत है जब इंसान अपनी नेक आमाल को अल्लाह के लिए अंजाम दे और दुनियाई पहचान की ख्वाहिश ना करे। मरहूम जनाब सैयद रसूल साहब की खूबी उन्हें एक मुनाफरिद और मिसाली शख्सियत बनाती है और उनकी खिदमत हमेशा याद रखेगी। वो चमन का एक गुल था, वो चमन का एक गुल था जो महका भी बहुत था। वो चमन का एक गुल था जो महका भी बहुत था। रहमतों का साया था जो चमका भी बहुत था। खिदमत अखलाक थी जिसकी जिंदगी का मकसद। ऐसे फरिश्ते सिफात लोग दुनिया में कम थे। हर दिल में है एक यादों का उजाला, हर दिल में है एक यादों का उजाला। रहेगा नाम उनका सदर चांद सितारा। दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। सुकून भरी रोशनी उनके हक में अता करे। माय डियर ऑडियंस, एलाइट बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल की जो बुनियाद रखने वाली अजीम शख्सियत मरहूम सैयद रसूल जी हैं। I request now all the audience to kindly switch on your mobile torch as a symbol of peace and to pay tribute to Marhum Sayyid Rasul Sahab. On the count of 3, please switch on your mobile torch. Yes, audience. 1, 2, that's very nice. Be quick. Yes, 1, 2, and 3. थैंक यू माय डियर ऑडियंस। ये रोशनी अल्लाह ताला हमेशा हमारे ज़िंदगियों में और उनकी ख़बर में हमेशा ये रोशनी कायम रहे। अल्लाह ताला उन्हें हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आबे कौसर नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला उनका दीदार नसीब अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर द लीजेंड नन अदर देन मरहूम सैयद रसूल साहब। थैंक यू। Last 11 years, our school has experienced remarkable growth and transformation. This presentation showcases key milestones in our journey and highlights our aspirations for the future.
Next slide, please. Yes, my dear parents, you can see the timeline. We started our journey in 2013. 2013 to 16 was the foundation and established year. In this grade, we started with our mission, vision and core values. In 2017, we had a good growth and expansion. We had introduced new programs, increase of students, increase of staff and management. 2019 and 20 was innovation and challenging time. Adaptation during COVID. COVID was the hard time for everyone. Again, back to 2024-25, our current achievements and future vision. 2013 to 16. As the foundation year of our school, we marked by determination, resilience and a strong belief in our vision. Starting a school from the ground up was not an easy task. We faced numerous challenges from building trust within the community. हमने अपनी स्कूल के आगाज 2013 में किया था और इसका एक विजन बनाया था कि हम हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे। स्क्रैच से स्टार्ट करना था और कम्युनिटी का ट्रस्ट हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। हमने एक ऐसा करिकुलम को अपनाया जो दीन और दुनिया की बेहतरीन तवज्जो बरकरार रखता है। मेहनत, लगन और टीम वर्क के जरिए हमने अपने मकसद को पूरा किया। हमारे पास 250 स्टूडेंट से ज्यादा के लिए जगह थी, लेकिन ये माइलस्टोन सिर्फ एक नंबर ही नहीं बल्कि एक कामयाबी का सबूत था। टू 2017 to 20 ये ड्यूरेशन में हमने इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू प्रोग्राम्स को किया था, जहां पे एकेडमिक एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, बहुत सारे लेक्चर्स कंडक्ट किए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को इनवाइट किया ताकि बच्चों के अंदर हिम्मत अफजाई पैदा हो। हमने लिटरेसी एंड स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स भी डेवलप किया, जहां पे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप को हमेशा हमारी स्कूल में फर्स्ट और हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप हमेशा हम हमारी स्कूल में इंपॉर्टेंस देते हैं। ये पहले नंबर पे है क्योंकि बिना पर्सनालिटी के, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के स्टूडेंट अच्छा तो एकेडमिक में परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन असल जिंदगी में परफॉर्म नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप देखते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे स्कूल में। बात ग्राउंड की नहीं है, बात नीयत की होती है। अगर नीयत हो तो इंसान कोई भी चैलेंजेस को पार कर लेता है। क्रिएटिव आर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स है, प्रोग्राम्स है। यस माय डियर ऑडियंस, ये इवेंट्स और प्रोग्राम्स ही बच्चों के अंदर बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करते हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एम्पैथी, कंपैशन और बहुत कुछ। फिर डिजिटल लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी को हमने इंट्रोड्यूस किया। पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एजुकेशनल वीडियोस हमने इम्प्लीमेंट किया हमारे क्लासरूम्स में। सेलिब्रेशन ऑफ मल्टीकल्चरल प्रोग्राम्स। आप इतने सारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, कन्नड़ा राज्योत्सव हो या फिर मैंगो डे हो या फिर वेजिटेबल डे हो, उसमें स्किल के साथ साथ हम हमारे स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। स्वच्छ भारत, कहते हैं कि पाकी आधा ईमान है, अत्तहुरुल शतरुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ ईमान। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने बच्चों को ये सिखाया कि आप सिर्फ अपने बदन का पाक रखना नहीं, जगह का पाक रखना नहीं, बल्कि अपनी सोच भी पाक रखना है, अपनी दिलों को पाक रखना है, अपने नियतों को पाक रखना है। पेरेंट एंगेजमेंट वर्कशॉप, दिस इज द मोस्ट बैकबोन ऑफ बैंगलोर, एलाइट बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल। पेरेंटिंग एंगेजमेंट वर्कशॉप एक ऐसी बुनियाद है हमारे स्कूल की जहां पे हम बच्चों की नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी इस्लाह करते हैं। तरबियत क्लासेस, हमारे यहाँ पे एवरी सैटरडे तरबियत क्लासेस भी होती है और असेंबली लर्निंग भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This was the COVID and the most challenging time ever we have faced. Adaptation during COVID.
कोविड-19 के दौरान हमने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए नए तरीके अपनाए। सुनने में आता है कि ऑनलाइन क्लासेस को बच्चे नहीं बैठते, लेकिन हमारे टीचर्स एंगेज हुआ करते थे, नए नए टेक्निक्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस लिया करते थे ताकि हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस बोर ना लगे। स्टूडेंट के साथ बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फिर भी हम डटे रहे। टीचर्स और मैनेजमेंट ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हम काउंसलिंग के जरिए ये क्लासेस को लगातार लेते रहे। ऑनलाइन असेंबली और इवेंट सेलिब्रेशन किया करते थे। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे बच्चे बिना एग्जाम दिए भी 100% नॉलेज अचीव किए हैं। 23-25 we are proud to say that we have achieved a lot in terms of students as well as teachers. इस ड्यूरेशन के दौरान हमारी स्कूल में बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल सिस्टम को छोड़ के हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट को अपनाया, जहां पे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, मटेरियल बेस्ड लर्निंग, क्रिएटिविटी, आर्ट, टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया। कैरेक्टर बिल्डिंग, कहते हैं कि अगर इंसान में अखलाक नहीं तो वो तालीम किस काम की। तो हमारे बच्चों का मेन बेस है कि हम तालीम के साथ साथ बच्चों को तरबियत भी करें। तो हमारी एलाइट बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल का मेन बेस है कि हम तालीम और तरबियत दोनों देते हैं। इनोवेटिव लर्निंग, इनोवेशन इज पार्ट ऑफ आवर स्कूल। आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, साइंस, मैथ्स, आर्ट, सोशल। वो किस लिए? क्योंकि बच्चे हमारे क्लास में आके प्रेजेंटेशन देते हैं, इनोवेशन होता है क्लासरूम्स के अंदर। मार्शल आर्ट्स, इस साल हम कराटे क्लासेस स्टार्ट किए। ये मार्शल आर्ट्स क्या है? मार्शल आर्ट्स एक फिजिकल फिटनेस है जो कि बहुत जरूरी है आज के बच्चों के लिए। वी हैड स्काउट्स एंड स्काउट्स, वी हैड टीचर्स ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। हर साल हर महीने हमारे यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होती है। हम अपडेट होते हैं, हम अपग्रेड होते हैं, टीचर्स, मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स। देन वी हैव इंस्पेक्शन फॉर क्लासेस। ऐसा नहीं कि टीचर्स पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, हमारी पूरी टीम इंस्पेक्शन करती है क्लासेस में कि टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, टीचर्स को कोई चैलेंजेस तो फेस नहीं हो रहे हैं, और हम उनको ये भी हेल्प करते हैं कि और बेहतर तरीके से कैसे इस चैप्टर को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे जिनके बच्चों के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हो। Yes, my dear parents, awards and rewards are part of our school academic growth. हिम्मत और अफजाई के लिए हमने awards और reward system रखा है। Next, parents orientation is part of our curriculum again. Then, alhamdulillah, we are taking extra classes for our 100% result. Next slide. This is our management team. Our management core team is the driving force behind our success. With a shared vision, expertise and dedication, we ensure smooth operation, strategic growth and a strong organization culture. ये quote by Mother Teresa. None of us, including me, ever do great things. None of us, including me, do great things, but we all can do small things with great love, and together we can do something wonderful. This is our Honorable Chairman of Elite Bangalore International School. It is a privilege to acknowledge the visionary leadership of our esteemed organization. ये true pillar of strength. इस बड़ी हस्ती के बारे में मैं क्या कहूँ? इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्कूल के लिए लिख दी है। जितना भी वो काम करते हैं, जितना मैं बयां करूँ उतना कम है। ये अपना वक्त दीन के काम में लगाते हैं और स्कूल के काम में लगाते हैं। हमेशा स्कूल के लिए खड़े रहते हैं। ये बड़े बड़े वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट से मिलते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि बेहतर से बेहतर स्कूल में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन स्कूल के लिए बहुत ज्यादा है। With his inspiring leadership, he is a compassionate guidance. ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं। ये इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन आप इनकी सिंप्लिसिटी को देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं बता सकता कि इतनी बड़ी हस्ती है। सोच उनकी बुलंद, इरादे मजबूत,
सोच उनकी बुलंद और इरादे मजबूत, हर बच्चे के सपनों को दिए एक रूप। नेकी ईमानदारी और सोच नहीं, नेकी ईमानदारी और सोच नहीं, हर कदम पर उनकी सोच है भरी। बचपन को दिया एक नया उजाला, बचपन को दिया एक नया उजाला, तालीम से जोड़कर हर एक बच्चा को पाला। सलाम है उस रहनुमा को जो हर सपने को देता है उड़ान का जहां। हर दिल में मोहब्बत, हर चेहरे पे मुस्कुराहट, ऐसे चेयरमैन साहब को हजारों सलाम। प्लीज हैव ए राउंड हैंड ऑफ अप्लॉज। कि इनका इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जरूरत है ऑडियंस। से यस और नो, पर देना पड़ेगा, राइट? The principal of our school is a visionary leader who dedication, wisdom and integrity with a deep commitment to education. मैं क्या कहूँ इस मोहतरमा के बारे में कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि अपना पूरा वक्त स्कूल को दे देते हैं। अगर आप इनको स्कूल की ग्रोथ के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए आप कभी भी इनको कॉल करो, शी इज अवेलेबल, ये अवेलेबल होते हैं। इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मार डाला, इन्होंने अपने नफ्स को खत्म कर डाला और सारी उम्र सिर्फ बच्चों के डेवलपमेंट में लगे हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए लगे हैं। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुबह देखा, ना शाम देखी, ना बारिश देखा, ना धूप देखी, बस खड़े रहे, डटे रहे बच्चों की ग्रोथ के लिए। आपके कदम से ही रोशन हर रास्ता, आपके कदम से ही रोशन हर रास्ता, आपकी मेहनत से है हर बच्चा है सफल और मास्ता। तालीम की रोशनी से आपने सबको सिखाया, हर एक को अपने सपनों का आसमान दिखाया। आपकी सोच है गहरी, आपका जज्बा है सबसे अलग। हर बच्चों की जिंदगी संवारना आप ही का काम है। आपके साथ हर मुश्किल आसान है, आपकी गाइडेंस से हर चिराग रोशन है। प्रिंसिपल साहिबा, आपको हमारी तरफ से सलाम। यस प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ बिलव्ड प्रिंसिपल मिसेस वहीदा बानू। Our managing director is an exceptional leader, renowned for his transformative role in education. He is also the visionary behind Kazan Academy, where he successfully trained 10th grade and PU students, guiding them towards academic and dynamic leadership. He constantly strives for innovation and instill a culture of commitment towards the quality education. 1 साल हो रहा है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए। What I can see is he is a person with all ethics, values and perfection. जिस वक्त से हमारी स्कूल से ये जुड़े हैं, इनका कमिटमेंट, इनका हार्ड वर्क, इनका डेडिकेशन अलग ही लेवल पर है। He is a dynamic kind of personality. इन्होंने अपना सारा वक्त बच्चों की डेवलपमेंट को दिया है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो चाहते हैं कि एकेडमिक में एक्सीलेंस पाए बच्चा, 90, 80 या 70 नहीं, बल्कि हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करे। आपके मेहनत और जज्बा है सबसे खास, आपका मेहनत और जज्बा है सबसे खास। हर मंजिल को आपने बनाया है आसान और पास। डायनामिक हैं आप, डायनामिक हैं आप, हर कदम में है नई सोच। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, आप ही हो हमारे सबके तरफ से खुशामदीद और सलाम। प्लीज ऑडियंस पुट राउंड अ हैंड ऑफ अप्लॉज टू माय मैनेजिंग डायरेक्टर। Introducing a remarkable leader, Muhammad Ali Jinnah. He is my honor to introduce a very talented and esteemed management member of Elite Bangalore International School. He is a true embodiment of discipline and organization. He is a dynamic leader with a wide range of talents. His dedication and passion for guiding students makes him a true inspiration. मोहम्मद अली जिन्ना सर हमेशा हमारी स्कूल के लिए हाजिर हैं।
उनकी डिसिप्लिन, उनकी कमिटमेंट, उनका हार्डवर्क से हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं. He is the heart and soul of the school. He is the director of Sports and Scouts Academy. All I can say is मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जज्बे का है एहसास, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जज्बे का है एहसास, अजीम हिम्मत और हौसला है बेमिसाल. स्काउट्स को सिखाया राहे वफा, स्काउट्स को सिखाया राहे वफा, स्पोर्ट्स में भी रखो बुलंद हर निशान. मोहम्मद अली जिन्ना साहब, आपको हमारी तरफ से खुशामदीद और सलाम. Yes, please put your hands together for Muhammad Ali Jinnah sir. Without wasting a minute of time, let me continue my presentation. You can see, my dear audience, this is the percentage of participation of our students. When I say about values and morals, we have an outstanding of 99% of students have engaged in values and morals. हमारे स्कूल में 99% तक बच्चों के अंदर अखलाक है, तालीम है, तरबियत है, हुस्न अखलाक है. They participate in every activity in our school. They perform and the quality that are essential in today's world. एक IAS बनना बड़ी बात नहीं है, एक डॉक्टर बनना बड़ी बात नहीं है, एक बेहतरीन इंसान बनना बड़ी बात है. Academic growth chart. Every single one of our students 100% have actively participated in a wide range of academics. 85% of our students have knowledge-based projects, completed assessments, evaluations, exams, achieving outstanding results across the state, my dear parents. Please give a round hand of applause for our outstanding, exceptional students for our 100% academic growth. Then skill and talent. I can say that 75% of our students have developed a wide, diverse range of skills. Skills are very important. 100% attendance is very important. हर प्रोग्राम में शामिल होना, हर इवेंट में पार्टिसिपेट होना, एनुअल डे में पार्टिसिपेट होना, यही स्किल एंड टैलेंट की बुनियाद है. माय डियर ऑडियंस, पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग. जरूरी नहीं है कि मैदान में जीत हो, जरूरी है कि मैदान में पहले उतरना जरूरी है. सो दिस इज अ स्किल एंड टैलेंट चार्ट. नेक्स्ट प्लीज. वी हैव वेरियस एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट डे. Every event we celebrate in our school has some key points. Not only develop the academic but also skill and talent. We are delighted to share that our Environment Day celebration was a huge success, my parents. These are the skills that they have developed in celebrating. They have creativity and innovation. They have leadership and teamwork. They have communication skills. They have problem solving skills. They have empathy, social responsibility, hands-on learning. ये जो हमारा environment day, this is not only about watering the plants and taking care of the nature, बल्कि इस टॉपिक से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि साइंस, different parts of leaves, different parts of a plant, what are the color and texture, mathematics, what is the shape of the leaf, what is the roots of the shape, and how many leaves are there, how many roots are there. They become very calculative. मैथमेटिकल माइंड हो जाता है बच्चों का जब आप इस तरीके के इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. वर्ल्ड ग्लोबल डे. इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी. जब इस तरीके के डेज आते हैं, हम बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन भी इनमें समझाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in Quran Surah Al-Anbiya, it says about the earth rotates and orbits. In Quran Surah Al-Dariyat, it has been said about Big Bang theory, and in Quran Surah Al-Mu'minun, it has described about water cycle. Science, हर चीज कुरान में मिलता है. This is what we integrate and teach our students the deen and dunya with the conceptual learning with events and activities. Next slide please. Doctors Day. Yes, we have celebrated Doctors Day. Many children were dressed up as doctors. छोटे बच्चों को हमने प्रैक्टिकल एक्टिविटी सिखाई और बड़े बच्चों को हमने ये सिखाया कि डॉक्टर्स बनने के फायदे क्या है, नीट को किस तरीके से क्रैक करना है, MBBS में कितने स्ट्रीम्स होते हैं,
अगर आप MBBS क्रैक नहीं कर सके तो क्या क्या ऑप्शंस है आपको. This is the main importance of celebrating our event. We told our students to wear doctor's coat and come so that to make them inspire, ताकि वो आगे जाके डॉक्टर बनने की ख्वाहिशात को इजहार करें. नेक्स्ट स्लाइड. स्किल एक्टिविटी डे. स्किल एक्टिविटी के बारे में तो बयां करते करते मैं थक जाऊंगी, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट, हिडन टैलेंट छुपा है, इट वाज आउटस्टैंडिंग. बिलीव मी, हर एक बच्चा आर्टिस्ट है. यस माय डियर पेरेंट्स, हर एक बच्चा आपका आर्टिस्ट है. पता नहीं अंदर कितने हीरे छुपे हुए हैं. You know, they come up with the incredible experience of students which showcase their talents. Sports have become an integral part of our school. आप देखते हैं कि scouts और sports से बच्चे कितना सीखते हैं. They have developed discipline within themselves. Discipline is the main important key aspect of education. My dear audience, discipline का पहली चीज क्या है? Time. वक्त की पाबंदी. बच्चे जब स्कूल को वक्त पे नहीं आते, the child is not at all disciplined. So discipline is very important. और डिसिप्लिन खुद हमारा इस्लाम सिखाता है. कैसे? 5 वक्त की नमाज, 5 नमाज ऑन टाइम, दैट इज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा. अगर वक्त पे ना पढ़ा जाए तो खजा हो जाता है. क्यों? अल्लाह ताला ने वो वक्त मुहर्रर रखा है ताकि आपको ये बताने के लिए कि वक्त कितना कीमती है और हर चीज ऑन टाइम होनी चाहिए. सो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स और स्काउट्स के जरिए डिसिप्लिन, पर्सनालिटी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ये सारी चीजें डेवलप करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. यू कैन सी दैट आवर स्काउट्स ट्रेनिंग. यस, नाउ आई केम टू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप. लास्ट ईयर मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ पेरेंट्स का जिन्होंने अपने बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करवाया. माय डियर पेरेंट्स, हम इतनी जगह इन्वेस्ट करते हैं हमारे पैसे को, लेकिन सही जगह सही टाइम पे इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन की निशानी है. यस, दिस इज द इन्वेस्टमेंट व्हाट यू आर डूइंग इट टुडे, और आगे जाके आपको इसका एक बहुत बड़ा फल मिलेगा. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ आवर इंटीग्रल करिकुलम. पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने से बच्चों के अंदर स्टेज फियर नहीं होता. पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने से बच्चे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के सामने खड़ के अपनी बात रखने की कुव्वत रखते हैं. आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे लोग डॉक्टर्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, लेकिन उनको बात करना बिल्कुल नहीं आता. उसका मतलब ये नहीं है कि वो बात नहीं करते, वो बात करते हैं, लेकिन उनकी बात बहुत धीरे होती है. एक लीडर वो है जो अपनी बात को ऐसे कहे कि दुनिया के हर कोने में गूंज उठे. This is what personality development workshop does, and I hope this year all the parents will help your children to participate in our workshop. हज सेलिब्रेशन डे, इसकी खूबसूरती मैं क्या बयां करूं आपको अपनी जुबान से. माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसा हज सेलिब्रेशन होता है, हर अहकाम को अदा किया जाता है, बच्चे एहराम में आते हैं, हर मॉडल्स बनाया जाता है, बच्चे तवाफ करते हैं, बच्चे हर चीज़ सीखते हैं. जैसे कि वो हज को जाते हैं, ID कार्ड से लेके, स्टैंपिंग से लेके, पासपोर्ट से लेके, ये खूबसूरती होती है हमारे हज सेलिब्रेशन की. अल्लाह ताला हमें सब हज करना नसीब अता फरमाए. टेक्नोलॉजी डे, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है ये बताने के लिए कि टेक्नोलॉजी आज कितना इंपॉर्टेंट रखता है. टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है. आजकल बहुत सारी चीजें आ गई है. बच्चे अपना एप्स डेवलप कर सकते हैं, बच्चे कंप्यूटर सीख सकते हैं, बच्चे एप्लीकेशंस बना सकते हैं. टेक्नोलॉजी सीखने का बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसको सही तरीके की इम्प्लीमेंट करना, सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, पोलिंग फॉर स्टूडेंट्स इलेक्शन. जैसे कि इलेक्शन आम होता है, हमारे स्कूल में भी, एलाइट बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल में भी पोलिंग होता है स्टूडेंट्स का, जहां पे हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि लीडर क्या होता है, लीडरशिप वैल्यूज क्या होती है, और आप अपनी क्लास के लिए, अपनी स्कूल के लिए एज ए लीडर, एज ए हेड, व्हाट विल यू डू, आप क्या कर सकते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं. अगर आज आप ये चीज बच्चों में नहीं डाले तो वो कौम के लिए क्या करेंगे.
वो इंडिया के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या करेंगे, वो तभी करेंगे जब आप इसी उम्र से उनके अंदर डालते हैं कि लीडरशिप वैल्यूज क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। इस साल बहुत सारे बच्चे स्काउट्स कैंप के लिए बाहर गए थे और that was a most entertaining, energetic activity where they learned lot of activities, discipline, hard work, dedication, teamwork and a lot. Be a role model. आप देख सकते हैं कि बच्चे मॉडल्स बनाकर आते हैं। इससे क्या होता है, इससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके बच्चों के अंदर। हम कहते हैं कि आप टीचर हैं, आप रोल मॉडल है, चलो क्लास में पढ़ाओ, लेट मी सी कि आप कैसे पढ़ाते हैं। तो बच्चा ये मॉडल लेकर क्लास में आता है, खुद टीचर बनकर पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंस्टिल दिस वैल्यूज एट दिस टेंडर एज। पार्टिसिपेशन फॉर इस्लामिक शरिया लॉ। दुनिया के साथ साथ हम दीन को भी अपनाते हैं, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो दुनिया के लिए हो या फिर इस्लाम के लिए हो। हमारी सारी टीम, सारे टीचर्स हमारे प्रिंसिपल के साथ सवेरे से लेके शाम तक उस मैदान में डटे रहे, खड़े रहे, खिदमत करते हुए सारे कौम की और हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाते हुए। माय ऑडियंस, प्लीज गिव राउंड हैंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द टीम हु हैज बीन पार्ट ऑफ दिस इस्लामिक शरिया लॉ। Yes, we had educational information workshop from outside. ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ वर्कशॉप्स करते हैं, बहुत सारी जगहों से बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पेरेंट्स ओरिएंटेशन। यस, अभी किसके पास बैलून बाकी है? नेक्स्ट टाइम आने पर फोड़िएगा मत, ठीक है? तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज आवर बैकबोन ऑफ एलाइट बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल। पेरेंट्स ओरिएंटेशन का जब मैं बात करती हूँ तो माय पेरेंट्स, इट्स योर मेन ड्यूटी। आपकी जिम्मेदारी है कि आप पेरेंट्स प्रोग्राम अटेंड करें, पीटीएम्स को अटेंड करें। क्यों, किसके लिए? पड़ोसी के बच्चों के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट ऑल द पेरेंट्स टू प्लीज बी पार्ट ऑफ आवर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। सैटरडे तरबियत क्लासेस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे प्रिंसिपल और चेयरमैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको खूब नवाजे दीन और दुनिया की दौलत से। आज का कौम और आज की दुनिया, आज का जमाना, आज के यूथ, आज के बच्चे आगे निकल चुके हैं और हाथ से निकल चुके हैं। आप देखते होंगे कि वो जमाना था जब हम माँ बाप के सामने उफ तक ना कहते। आज ये जमाना है कि बच्चे माँ बाप को ऊंची आवाज में बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि उनकी तरबियत करना घर और बाहर स्कूल में बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों को देखते हुए, नस्ल बिगड़ते हुए, आज के यंगस्टर्स को बिगड़ते हुए हमारे प्रिंसिपल और चेयरमैन ने ये फैसला किया कि जैसे जुम्मा के दिन खुतबा होता है, हर हफ्ता यहाँ पे तरबियत क्लासेस ली जाती है। बड़े बड़े आलिम आते हैं, बड़े बड़े मुफ्ती आते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं ताकि आपके बच्चों की इस्लाह हो जाए। माय डियर ऑडियंस, ऐसा एक स्कूल बता दीजिए जहाँ पे तरबियत क्लासेस, जहाँ पे इस्लामिक क्लासेस होती है हर हफ्ता, ताकि आपके बच्चे कोई दूसरा रूप ना जाए। इसी बात पर I want you all to have a round hand of applause to this wonderful team, Elite Bangalore International School. Now I'm coming to the end of my presentation, awards and achievements. Thank you so much. You can see this is part of the tarbiyat. This is part of the values, ethics that she has brought water to me. Allah आपको जज़ाए खैर दे. Yes, next. Next slide, please. Yes, gone are the days when teaching was limited with traditional system. ABCD 1 2 3 अभी माने नहीं रखता. आज माने रखता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की वजह से, ये होलिस्टिक अप्रोच की वजह से आज हमारी स्कूल्स एक टॉप स्कूल में शामिल होती है। नेक्स्ट, अचीवमेंट अवार्ड फॉर एकेडमिक्स।
हमारे बच्चे जब क्लासेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आउटस्टैंडिंग मार्क्स लाते हैं, तो हम उनको अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स देते हैं। क्यों? ताकि उनकी मेहनत जाया ना जाए, उनके अंदर हिम्मत अफजाई आए, उनके अंदर चैलेंजिंग आए, कंपटीशन आए, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। कन्नड़ा राज्योत्सव रैली हर साल, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, कन्नड़ा राज्योत्सव हो, हम पेट्रियोटिज्म को अपने सीने में रखकर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रैली निकाली गई है हमारे स्कूल से और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमें अवार्ड भी मिला है। मेरिट सेरेमनी अवार्ड, जब स्कूल से बच्चे ग्रेजुएट होके जाते हैं, 10th पढ़कर जाते हैं, तो क्या वो पराए हो जाते हैं? हमारे बच्चे हमारे रहते हैं, इसलिए हम उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें फिर से बुलाते हैं और उनको मेरिट अवार्ड देते हैं। बेस्ट टीचर अवार्ड, वी आर इनक्रेडिबली प्राउड टू अनाउंस दैट आवर कन्नड़ा टीचर Salma has received the best teacher award for her outstanding dedication and contribution. Dear audience, please have a round hand of applause. We are committed to supporting and encouraging our teachers. Our teachers are dynamic, hardworking, dedicated. We have an outstanding team with us. 78th Independence Day Award for March Past. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें 78th इंडिपेंडेंस डे के लिए एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, हमारी स्कूल को, हमारे बच्चों को, हमारे मैनेजमेंट को। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड फ्रॉम एबेंजर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जब ये इंस्टीट्यूट हमारे स्कूल को आते हैं देखने के लिए, when they listen to our concept, when they listen to our curriculum, when they listen to our assessment, the way we are bringing our students, they were shocked, they were impressed, and they told that our school has been recognized for one of the toppest school for the award purpose. Kusuma Award from Scouts and Guides. Alhamdulillah, we are so honored to receive. ये बहुत ही हमें शान की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी इज्जत बख्शी है कि हमारे मैनेजमेंट को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे स्कूल को वन ऑफ द टॉपेस्ट अवार्ड कुसुमा अवार्ड्स फ्रॉम स्काउट्स एंड गाइड्स का ऑनर मिला है। आप ये देख सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एफिलिएटेड विद स्काउट्स एंड गाइड्स कर्नाटका है। यस, आवर फ्यूचर प्लान्स, Elite Bangalore International School has definitely future plans for 2025. Let us see what is that. Robotics. Yes, my dear parents, we are introducing robotics in the field of engineering and technology, which deals with the design, constructions, operations and use of robots. We'll be teaching them the basic start of operations, कैलकुलेशंस एंड कंस्ट्रक्शंस। इस साल हम रोबोटिक्स को हमारी स्कूल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि बच्चे मोबाइल फोन के साथ नहीं बल्कि मशीन के साथ बैठकर काम करें। नेक्स्ट प्लीज। यस, थालियों में कंजूसी नहीं करते, बजाइए। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम कहते हैं कि हर जगह ये आई है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा एक 4 साल का बच्चा है, जब मैं उसको कुछ बताती हूँ जैसे कि एक हॉर्स को पर आ गए और वो उड़ रहा है, व्हाट डज ही सेज, वो कहता है अरे अम्मी ऐसा नहीं होता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इमेजिन माय ऑडियंस, 4 years। यस, यू आर लिसनिंग। प्लीज बैक पीछे जाइए। What is artificial intelligence? This is machine learning, neural network, natural language processing and robotics. हम इसको implement करने वाले हैं। छोटे छोटे प्रोग्रामिंग। आपने कहीं सुना है या देखा है कि 12 साल का बच्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है एप्लीकेशन को बना के? Yes, nowadays the world is very fast. 12 years and 14 years students are developing an application. They are making a website. ये ताजुब की बात नहीं है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। We are proud to say that our Elite Bangalore International School is coming up with such a wonderful integrated curriculum for your students. Next. Yes, how to talk about festivals in India.
English Language Festival. This year will be organizing English Language Festivals, जहाँ पे एक एक बच्चा आके परफॉर्म करता है. कोई एंकर बनेगा, कोई रिपोर्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा और यहाँ पे एक एक डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेगा. एजुकेशन पे, फाइनेंस पे, पॉपुलेशन पे और बहुत सारी टॉपिक्स पे. दिस विल बी आवर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल. नेक्स्ट प्लीज. यस, डिजिटल फेस्ट. जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करने वाले हैं. एंड ऑफ द ईयर हमारा डिजिटल फेस्ट होगा, जो आप देखेंगे हमारे बच्चों ने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है, हमारे बच्चे कैसे कैसे एप्लीकेशंस को सीखे हैं, हमारे बच्चे डिजिटल के जरिए क्या क्या नई नई चीजें आपके सामने रखते हैं. दिस विल बी अवर अचीवमेंट, बिगेस्ट अचीवमेंट इन द हिस्ट्री. नेक्स्ट, STEM lab, science, technology, engineering and mathematics. It's high time to have STEM lab in our school. We will be introducing STEM lab in our school, जहाँ पे बच्चे practically materials के साथ machines बनाएंगे, robots बनाएंगे, parts को समझेंगे, technology को समझेंगे, wiring system समझेंगे, operations को समझेंगे, इंशाल्लाह. Next please. और इसके साथ साथ हमारा 100% एकेडमिक ग्रोथ, हमारा असेसमेंट्स, हमारा इवैल्यूएशंस. इस साल हम महीने में एक बार नहीं इंस्पेक्शन बल्कि हफ्ते में 2 बार इंस्पेक्शंस करेंगे, फुल डे इंस्पेक्शंस करेंगे कि बच्चे क्लासरूम्स में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और क्लास में किस तरीके से क्लासेस पढ़ाया जा रहा है. यस, बिफोर फिनिशिंग माय प्रेजेंटेशन, माय हार्टफेल्ट थैंक यू टू आवर यूथ पैट्रन. Special thank you to Umar Farooq, who has actively supported and taken initiatives. Please give round hand of applause to Umar Farooq. ये अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन हमेशा स्कूल के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा इवेंट्स के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना राय मशवरा रखते हैं. This is what we want. This is what we want in every individual. Every individual. Let it be our student, let it be our teachers, let it be our management. Thank you once again, parents, for listening to me patiently. Jazakallahu khair.